Okay, so the question is question number 2. Question number 2, 5m minus n equals to 3m plus 4n. Firstly, we have to find this value and then we have to find this value. So what I will do, what is the question, I will write as it is. See here, question is 5m minus n equals to 3m plus 4n. This is the question given. What I will do, I will take m term on the left hand side and n terms on the right hand side. मतलब क्या करना है, आपको जोड़ी वालों को एक तरफ करना है, mm वालों को एक साथ कर देंगे. So what you will get 5m, this 3m ना, so shift left hand side, you will get minus 3m. Yes or no? Similarly here you have 4n. If you will shift this minus n, you will get plus n. Yes or no? So 5m minus 3n is how much? It is 2m equals to 4n plus n is what? It is 5n. Okay, so we have to find m upon n. We have to find m upon n. क्या करूंगा देखो, m ऐसे ही रखता हूँ, ये n को इधर फेंकूंगा left hand side, तो n is in into, n is in multiply form, right? So if you will shift towards left hand side, you will get divided by n. Similarly 5 is here, right? So if you will shift 2 on the right hand side, so you will get divided by 2. Guys, don't write abhi anything. Okay, Kavita, cool, it's understood. So m by n equals to 5 by 2. M by n is how much? It is 5 by 2. So हमको m by n मिल गया है 5 by 2. Now what we have to find? We have to find this first one. What is this? m square plus n square upon m square minus n square. This we have to find out. So what I will do now, all of you focus here, guys. Important step, very important step. What I will do, I will divide numerator and denominator by n square, because n square है ना. So what I will do, I will divide numerator and denominator by n square. तो यहाँ पर भी n square से divide करूँगा ना, यहाँ पर भी n square से divide करूँगा. So what you will get, see here all of you, m square, ये m square plus n square के upon n square है ना, तो दोनों को n square जाएगा. m square upon n square you will get plus m square, sorry, plus n square upon n square you will get, divide by m square upon n square you will get, minus n square upon n square you will get. Any doubts in this step, guys? Then let me know. मैं खाली डिवाइड बाय n स्क्वायर कर रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो अलग अलग जाएगा उसको. नाउ सी हियर, n square cancelled out, n square cancelled out. So what you will get, basically you will get m square upon n square plus 1 upon m square upon n square minus 1. Any doubts still here? Then let me know. Any doubts still here? Then let me know. कुछ नहीं किया ऋतिक, मैंने m स्क्वायर को डिवाइड किया n स्क्वायर से. वी हैव टू डिवाइड द n स्क्वायर. तो अगर आप डिवाइड करते हो ये पूरे टर्म से ना, ये पूरे टर्म से, तो हर एक के पास n स्क्वायर जाएगा, m स्क्वायर के पास भी जाएगा, n स्क्वायर के पास भी जाएगा. देखो m स्क्वायर के पास भी गया डिवाइड में, n स्क्वायर के पास भी गया, दोनों के पास जाएगा. Clear any doubts? If you want, you can take the screenshot. n स्क्वायर कट गया, n स्क्वायर कट गया, इसके लिए 1 आया, बिकॉज मेरे पास m by n था. वी हैव m by n, राइट, 5 by 2. तो मेरे पास m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आना चाहिए ना फिर. अंडरस्टूड आदिति दुर्गे? सी, हमारे पास m by n था, राइट. सो इसके लिए m स्क्वायर के नीचे n स्क्वायर आना चाहिए ना, तो हम m by n ले सकते हैं. दैट्स व्हाई. सौम्या, वही तो मैंने बताया आपको, हमारे पास m by n है और इधर हमारे पास m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आना चाहिए ना m by n आने के लिए. दैट्स व्हाई हम लोग n स्क्वायर ले रहे सब जगह पे. ओके, यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि हम लोग आगे बढ़े. आदित्य अंडरस्टूड? आदित्य दुर्गे? Why I am taking n square only, understood? Okay, cool. Take the screenshot. Now what you got in the final answer? We got, see, हमको ये मिला m square upon n square plus 1 upon m square upon n square minus 1. Till here we got. We have got m by n कितना मिला था हमको? m by n 5 by 2 मिला था, right? m by n we got 5 by 2. m by n we got 5 by 2. Now see here, this is m square by n square ना guys. तो m square by n square मतलब m by n the whole square बोल सकता हूँ मैं इसको. m by n the whole square बोल सकता हूँ मैं इसको.
प्लस 1, इसको भी वैसे लिखूंगा m by n the whole square minus 1. देखो m square upon n square है ना, so I can directly write m by n the whole square. दोनों को एक ही स्क्वायर दे दिया मैंने. So what you will get, m by n means what, 5/2 का स्क्वायर plus 1 upon m by n means what, 5/2 का स्क्वायर minus 1. So here you got 5/2 का स्क्वायर means 5 square means 25, 2 square means 4 upon plus 1 upon again 25/4 minus 1. Okay, so 25/4 minus plus 1, 25/4 minus 1. यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको डिलीट कर रहा हूँ. मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा, डोंट वरी. उससे अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले, इस साइड का इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट. दिस इज सेकंड स्लाइड. ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लिए. तो मेरे को ऐसा मिला, देखो अभी 25/4 प्लस 1 आई गॉट 25/4 माइनस 1 आई गॉट. अपॉन कुछ नहीं तो 1, अपॉन कुछ नहीं तो 1. क्रॉस मल्टीप्लाइड गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 25 1 25 प्लस 4 1 4 अपॉन 4 डिवाइड बाय 25 1 25 minus 4 1 4 upon 4. This 4 get cancelled out. This 4 get cancelled out. So what you got? 25 plus 4 is 29 upon 25 minus 4 is 21. So your final answer is 29/21. Take the screenshot guys. बहुत सिंपल समता है. Steps वही, क्रॉस मल्टीप्लाई करो खाली. Steps is, and we got 5 whatever. Okay, now come here. 3m plus 4m upon 3m minus 4m. What you have to do? यहाँ पर देखो m है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग. अनूप लीव द मीटिंग, योर नेटवर्क इशू इज देयर. सबको प्रॉपर आवाज आ रहा है, तुमको ही नहीं आ रहा है. लीव करो मीटिंग को. 3m plus 4n अपॉन 3m minus 4n. अभी यहाँ पर डिवाइड किससे करोगे बताओ मेरे को, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर m by n है. डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड किससे करोगे? ओनली n. एग्जैक्टली, ओनली n. साई पाठक, राइट आंसर. देखो m है ना, तो m by n आना चाहिए ना मेरे पास, तो हम लोग खाली n से करेंगे n. तो व्हाट आई विल डू, n से करेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे. डिवाइड बाय n हो जाएगा, इधर भी डिवाइड बाय n हो जाएगा. तो ये अलग अलग होगा. देखो 3m अपॉन n प्लस 4n अपॉन n अपॉन 3m अपॉन n माइनस 4n अपॉन n. अंडरस्टूड टिल हियर? डिवाइड बाय n. अब यहाँ पर n कट गया, यहाँ पर भी n कट गया. अंडरस्टूड? ध्यान दो आदित्य, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मेरे को m by n लाना है. इससे पहले m स्क्वायर था, इसके लिए m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर लिया मैंने. अब यहाँ पर सिर्फ m है, इसके लिए m by n लिया मैंने. अंडरस्टूड आदित्य का एक वर्ड. चलो यहाँ पर क्या आया अभी, 3m by n आया प्लस 1 अपॉन 3m by n माइनस 1. अभी ध्यान दो, 3 इंटू m by n कितना है, m by n आपका 5/2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू m by n कितना है, 5/2 है माइनस 1. सेम वही हम लोग वैल्यूज खाली डाल रहे हैं इसके अंदर. चलो इधर आओ अभी, ऑल ऑफ यू कम हियर. इसका वैल्यू देखो, इतना स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले फटाफट, सो दैट ना हम लोग आगे बढ़ेंगे. स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट. सबको डाउट्स क्लियर हो गया? एन कहाँ पर ले रहे और एन स्क्वायर कहाँ पर ले रहे? मेरे को बेसिकली एम अपॉन एन लेना है इसके लिए. चलो यहां तक आ जाओ. कूल नाउ. सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देखो क्या मिला हमको, 3 इंटू 5/2 मिला प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 5/2 माइनस 4. देखो क्या होएगा, ये होएगा 3 for 15/2 प्लस 4 अपॉन 15/2 माइनस 4. अंडरस्टूड? सो यहाँ पर देखो 4 अपॉन 1 हो जाएगा, 4 अपॉन 1 हो जाएगा, बिकॉज नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा. नाउ सी हियर, 15 1 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे गाइस हम लोग. 15 1 जा 15 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 2. 2 get cancelled out. 2 get cancelled out. So finally you have 15 plus 8 is how much? It is 23 upon 15 minus 8 is how much? It is 7. So this is your final answer guys. Kindly take the screenshot. Kindly take the screenshot. Chalo idhar aao. What is given in the question guys? Basically what is the question? First follow that. A y plus z. Just a moment.
C. What is given? A y plus z equals to B z plus x equals to C x plus y. This is the question, yes or no? Yes, Aditi. That's the same mail ID. A y plus z, B z plus x and C x plus y. What will be the first step? ये तीनों equal है guys. So what I will do? I will make equal to k. मैं मेरी मर्जी का कुछ भी कांस्टेंट लेता हूँ k. मेरी मर्जी कुछ भी कांस्टेंट लेता हूँ k. Okay. Now what I will do? ध्यान दो. This is equals to k. Yes or no? So I can write down a y plus z equals to k. Okay. Similarly, b z plus k. Sorry, z plus x आएगा ना. Z plus x equals to k. Similarly, C x plus y equals to k. Understood till here? देखो चारों इक्वल टू, तीनों इक्वल टू k था. मैं इसको और k को इक्वल लिया, फिर इसको और k को इक्वल लिया, फिर इसको और k को इक्वल लिया. दिस इज द बेसिक. दिस इज द बेसिक. अब यहाँ पर a क्या मिलेगा बताओ मुझे? a I will get k upon y plus z. a I will get k upon y plus z. Similarly, b I will get k upon z plus x. Yes or no? K upon z plus x. C I will get k upon x plus y. सर ये नीचे क्यों जा रहा है बार बार? सिंपल है गाइस. y प्लस z इंटू में इधर गया तो डिवाइड हो गया. z प्लस x इंटू में इधर गया तो डिवाइड हो गया. x प्लस y इंटू में इधर गया तो डिवाइड हो गया. यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो. यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो. अंडरस्टूड टिल हियर? समझ में आया सबको? आगे बढ़े. चलो बहुत बढ़िया. अब क्या करो, तुम स्क्रीनशॉट मत निकालो बिकॉज मैं प्रिंटेड नोट्स देने वाला हूं आपको. खाली सम देखते बैठो. ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया. नहीं, अबे आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ विल कंसीडर फर्स्ट डिनोमिनेटर. फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है अपने पास? ए इंटू बी माइनस सी. दिस इज द फर्स्ट डिनोमिनेटर, राइट? राइट. तो व्हाट इज द ए? ए हमको क्या मिला था? ए हमको मिला था, अगर आप ध्यान दोगे, ए हमको मिला था के अपॉन वाई प्लस जेड. इससे पहले वाला साइड का बता रहा हूं मैं. ए हमको मिला था के अपॉन वाई प्लस जेड ब्रैकेट. बी हमको क्या मिला था? के अपॉन जेड प्लस एक्स माइनस. सी हमको क्या मिला था? के अपॉन एक्स प्लस वाई. These are things we got, right? Now what I will do the next step, all of you focus here. This k, ये जो k है ना, दोनों में कॉमन लूंगा मैं. कॉमन लूंगा तो k बाहर आ जाएगा. k बाहर आ जाएगा और पहले से बाहर एक k है. k इंटू k क्या होगा भाई? k स्क्वायर. So what you will get? K square upon y plus z. Okay, so here you will get 1 upon z plus x minus 1 upon x plus y. Understood till here? 1 upon z plus x upon 1 upon z plus y. यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? Now see here, all of you see here. ध्यान दो अच्छे से. What I am doing? K square upon y plus z as it is. ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करो. x plus y इधर इंटू हो जाएगा तो x plus y वन जा x plus y माइनस z प्लस इधर इंटू हो जाएगा तो z है तो ये माइनस z हो जाएगा और x है तो ये माइनस x हो जाएगा. बिकॉज ये माइनस है ना गाइस, इधर दिख रहा है आपको, तो ये माइनस दोनों को जाएगा ना, माइनस z माइनस x हो जाएगा अपॉन ये मल्टीप्लाई होएगा आपका. क्या होएगा? ये होएगा आपका z प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन. ऐसा कुछ होने वाला है आपका इसमें. चलो अभी आगे बढ़ जाओ. क्या आएगा देखो इधर, ध्यान दो अच्छे से. अभी क्या कट रहा है देखो, माइनस एक्स एक्स कट गया, माइनस एक्स एक्स कट गया. सो व्हाट यू विल गेट हियर फाइनली? क्या मिलने वाला है हम लोग को बताओ? देखो के स्क्वायर मिलेगा अपने को, के स्क्वायर मिलेगा अपॉन वाई प्लस जेड मिलेगा और अंदर बचेगा आपका वाई माइनस जेड अपॉन जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वन. ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो, समझेगा तुम लोग को. वाई माइनस जेड अपॉन जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई मिल गया आपको. यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो. सही है ना यहाँ तक? ना व्हाट इज द क्वेश्चन? हमको क्या निकालना था? देखो क्वेश्चन देख लेते. वाई माइनस जेड अपॉन ए माइनस बी निकालना था देखो. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर ये क्या है? ए बी माइनस सी है. यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नॉर्मलनेस में आ गए हम लोग. अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से. अभी ये यहाँ तक हम लोग ने रुका दिया चीजों को. क्या आया?
a इंटू बी माइनस सी है हमारे पास, के स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड आया बाहर में, वाई माइनस जेड आया अपॉन जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। यहाँ तक हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है। नहीं, अभी हमको चाहिए क्या, देखो हमको यहाँ पर चाहिए y माइनस जेड के नीचे चाहिए ए बी माइनस सी, y अपॉन जेड के नीचे चाहिए ए बी माइनस सी। कैसे लाएंगे बताओ मुझे अभी, y माइनस जेड के नीचे चाहिए ए बी अपॉन सी, कैसे लाएंगे? यस, एनी हिंट? आप लोग से पूछ रहा हूं मैं, कुछ हिंट दो। सेम मेथड, देखो यहाँ पर बी इस वर्ड, बी क्या मिला था अपने को, याद है किसी को बी क्या मिला था हम लोग को? के अपॉन जेड प्लस एक्स, के अपॉन जेड प्लस एक्स। सी क्या मिला था हम लोग को? के अपॉन एक्स प्लस वाई, माइनस ए क्या मिला था हम लोग को? के अपॉन वाई प्लस जेड। क्या करेंगे आगे, के को कॉमन लेंगे अपन, देखो के स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा जेड प्लस एक्स, फिर बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस जेड। अंडरस्टूड? वही सेम मेथड जिससे पहला किया अपन ने भी, ठीक है। वैसे 3 मिलेगा अपने को गाइस, समझ रहे हो कैसा मिलेगा अपने को? 3 मिलेगा। तीनों का मैं फाइनल इक्वेशन लिखता हूँ गाइस, बिकॉज सम बहुत लंबा हो जाएगा। तीनों का फाइनल इक्वेशन लिखता हूँ। कैसे करना है स्टेप समझ में आया? पहला वाला ये कैसे समझ में आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया पहला वाला, वैसे ही दूसरा भी करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, फिर तीसरे को भी करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे करके 3 इक्वेशन आएगा गाइस आपके पास में, वो 3 इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ध्यान दो। अभी फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या मिला आपको, मैं बता दो। फर्स्ट इक्वेशन आपको ऐसा मिला, ध्यान दो अच्छे से, y माइनस जेड अपॉन a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। दिस यू गॉट इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड क्या मिला आपको? सेकंड मिलेगा z माइनस एक्स अपॉन b इंटू सी माइनस ए equals to you got here x plus y, y plus z and lastly z plus x. इक्वेशन नंबर 2 है, here also k square। थर्ड क्या मिला आपको? थर्ड मिला आपको x माइनस वाई अपॉन c इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू सेम x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड z प्लस एक्स। इक्वेशन 3 ये हो गया आपका k स्क्वायर। देखो मैंने एक ही मेथड समझाया है आपको, खाली मैंने खाली ये वाला ही बताया आपको, बाकी दो सेकंड और थर्ड आप निकाल सकते हो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नाउ सी राइट हैंड साइड इन ऑल द केसेस इट्स सेम, एज यू कैन सी। देखो ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तीनों में सेम आ रहा है। सो व्हेनेवर फ्रॉम 1 to 3 if right hand side is same then left hand side is also, left hand side is also, yes left hand side is also what, it will be same, right? So ये और ये सेम रहेगा, वही तो हमको प्रूफ करना था, वही तो हमको प्रूफ करना था। So lastly we will write from 1 2 3 this all three are equal, okay clear? अब मैं इसको ax plus by upon x plus y equal to bx plus az upon x plus z, similarly ay plus bz upon y plus z, समझे? इक्वल टू में सब ऐड होएगा, न्यूमरेटर भी ऐड होएगा, डिनोमिनेटर भी ऐड करेगा, के नहीं, न्यूमरेटर भी ऐड होएगा, डिनोमिनेटर भी ऐड होएगा, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, याद आ रहा है? बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। मैं इसको रब कर रहा हूँ गाइस बिकॉज़ मेरे पास स्पेस कम है, आप लेकिन ऐसे लिखो, इधर लिखो, मैं जो लिखने वाला हूँ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, मैं जो लिख रहा हूँ वो तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, देखो ऐड करो ऊपर वाले को, ax प्लस जस्ट अ मोमेंट, ax प्लस by प्लस bx प्लस az प्लस ay प्लस bz अपॉन x प्लस y प्लस x प्लस z प्लस y प्लस z। अंडरस्टूड गाइस? आई एम डूइंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, उसमें न्यूमरेटर ऐड होता था, डिनोमिनेटर ऐड होता था। अभी देखो यहाँ पर सेम टर्म्स को ज्वाइन करो, ax bx को आई कैन राइट a प्लस b और x कॉमन लिया बाहर, यस और नो गाइस? ax प्लस बी और x कॉमन लिया बाहर, चल सकता है ऐसा। सिमिलरली प्लस by और ay, इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी कॉमन और y बाहर कॉमन गया, यस और नो? सिमिलरली az और bz, तो आई कैन राइट a प्लस बी एंड z इज द कॉमन अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस x यू विल गेट 2x प्लस y प्लस y यू विल गेट 2y plus z you will get 2z. Any doubt still here?
सम खत्म हो गया, सम खत्म हो गया। देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, ए प्लस बी कॉमन है सब जगह पे, सो यू विल टेक ए प्लस बी एज कॉमन, राइट। अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, यहाँ पर क्या कॉमन है गाइस, व्हाट इज इट कॉमन, व्हाट इज इट कॉमन, हियर कॉमन इज 2, अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, बिंगो, दिस गेट कैंसल्ड आउट, दिस गेट कैंसल्ड आउट, तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी अपॉन 2, यही तो प्रूफ करना था भाई हमको, यही तो प्रूफ करना था हमको। इज इट सो सिंपल स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज ऑफ दिस सम। ओके, प्रिंटेड नोट्स चाहिए क्या आपको, चलो प्रिंटेड नोट्स ले लो, फिर ले लो प्रिंटेड नोट्स। y प्लस जेड अपॉन ए इक्वल्स टू z प्लस एक्स अपॉन बी equals to x plus y upon c. What I will do in this case now, guys, all of you focus here. I will do invertendo. Invertendo पता है आपको क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो by invertendo I will get a upon y plus z, b upon z plus x and c upon x plus y. अंडरस्टूड। मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वर्टेंडो करो, रेसिप्रोकल करने का उसको नहीं, आप वही करो जो हमेशा आप लोग करते थे। क्या करते थे आपको याद है क्या, क्या करते थे आप लोग को याद है क्या, नहीं। देखो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, पहले वाले में, पहले वाले में मुझे चाहिए b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए। तो मैं क्या करूंगा, b को c से प्लस करूंगा और उसको माइनस करूंगा a से। देखो मेरा बात सुनो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, यस और नो। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में आप प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से, मेरे को b प्लस सी माइनस ए चाहिए ना, तो ऊपर का देखो b प्लस सी माइनस ए कर रहा हूँ, तो अपन में क्या आएगा बताओ, b का नीचे कौन है, z प्लस एक्स, प्लस c के नीचे कौन है, x प्लस वाई, माइनस, क्योंकि नीचे माइनस है भाई, a के नीचे कौन है, y प्लस जेड, लेकिन माइनस साइन है तो क्या होगा, माइनस वाई माइनस जेड। अंडरस्टूड टिल हियर, यहां तक समझ में आया आप लोग को, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो मुझे। देखो अभी तक क्या होएगा, ये क्या होएगा, b प्लस सी माइनस ए अपॉन क्या होएगा बताओ, ये z माइनस जेड कैंसिल हो गया, y माइनस वाई कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स हो गया आपका 2x। तो आपको इसका रेशियो क्या मिल रहा है मालूम क्या, इसका रेशियो आपको मिल रहा है 2x, b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2x मिल रहा है आपको, b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2x। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं मैं, क्योंकि आपने देखो अपन ने पहले वाले को सॉल्व किया ना, इक्वेशन नंबर 1 देगा, 1 2 नहीं 1। सर बट हाउ वी कैन गेट टू नो दैट वेयर वी हैव टू टेक माइनस एंड प्लस, देखो ना बेटा इधर दिया है ना, b के साथ प्लस करना है आपको, c को फिर माइनस करना है, आपको क्वेश्चन देखना है। अंडरस्टूड पूर्वा, क्वेश्चन देखना है आपको। तो यहां तक समझ में आ गया आपको, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, प्रिंटेड नोट्स भी दूंगा तो प्रिंटेड नोट्स का निकाल सकते हो आप स्क्रीनशॉट। चलो इधर आओ, अभी एक हो गया आपका, अभी सेकंड क्या है आपका, c प्लस ए माइनस बी। तो c प्लस ए माइनस बी देखो, c प्लस ए माइनस बी, c के नीचे कौन आता था भाई, c के नीचे कौन आता था, c के नीचे आता था x प्लस वाई, प्लस a के नीचे कौन था, y प्लस जेड। नाउ कम्स माइनस, व्हाट इज द बिलो ऑफ b, b के नीचे था z प्लस एक्स, लेकिन माइनस है ना, तो माइनस जेड माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, c प्लस ए माइनस बी अपॉन क्या क्या कट रहा है बताओ, माइनस जेड प्लस जेड gets cancelled out, minus x plus x get cancelled out, here you got ty 2y, इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है, फर्स्ट निकाल दिए, सेकंड निकाल दिया, अभी थर्ड निकालो। थर्ड में क्या आ रहा है आपका, थर्ड में आ रहा है a प्लस बी माइनस सी, देखो a प्लस बी माइनस सी। नाउ टेल मी a के नीचे क्या आएगा, a के नीचे आ रहा था y प्लस जेड, प्लस b के नीचे क्या आ रहा था, z प्लस एक्स, माइनस c के नीचे आ रहा था x प्लस वाई, तो माइनस साइन है ना, तो माइनस एक्स माइनस वाई। सो व्हाट यू विल गेट, a प्लस बी माइनस सी अपॉन y माइनस वाई कट गया, x माइनस एक्स कट गया, बचा सिर्फ 2z, इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टूड। तो वी हैव फाइंड आउट, इसका भी वैल्यू निकाला हम लोग ने, इसका वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू निकाला हम लोग ने। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो मुझे। ठीक है, सब इक्वल हो गया। अब मैं एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो हर बार में दिस इक्वल टू दिस था,
नहीं 1 2 3 को अगर हम लोग ध्यान देंगे, 1 2 3 को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 1 2 3 में हो रहा क्या था बेसिकली, ऑल ऑफ यू फोकस हियर, नहीं दिस क्वेश्चन इक्वल्स टू ये था, देखो इधर दिया है, दिस क्वेश्चन इक्वल्स टू दिस, ये वाला, दिस क्वेश्चन इक्वल टू दिस, मतलब हर इसमें ये इक्वल आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में भी ये था, फर्स्ट इक्वेशन में भी ये था, सेकंड में भी ये था, थर्ड में भी ये था। तो फ्रॉम 1 2 3 क्या मिलेगा, देखो फ्रॉम 1 2 3 क्या मिलेगा हम लोग को, ध्यान दो, b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2a 2x, इधर आया आपको c प्लस ए माइनस बी अपॉन 2y, और लास्ट में आपको a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2z, ये सब इक्वल में आ गया। अब देखो सब में 2 2 2 है ना, ऑल ऑफ यू देखो हर एक जगह पे 2 2 है, तो वी कैन गेट कैंसल्ड आउट, 2 2 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू गॉट, वी गॉट b प्लस सी माइनस ए अपॉन x, c प्लस ए माइनस बी अपॉन y, एंड फाइनली a प्लस बी माइनस सी अपॉन z। ओके, सो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, मैं प्रिंटेड नोट्स में वापस एक बार समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, नहीं इक्वल टू है बेटा, इक्वल टू में कॉमन नहीं लेते हम लोग, इक्वल टू में कैंसिल करते हैं, इक्वल टू में कॉमन नहीं लेंगे हम लोग कभी। चलो इधर आओ, अभी देखो अभी ध्यान से, हमने इसको पहले इन्वर्टेंडो किया, 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x² प्लस 12x प्लस 21 इक्वल्स टू 4x माइनस 5 upon 2x plus 3. Okay, now what I will do, I will simply do theorem on equal ratio. मैं सिंपली क्या करूंगा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो करूंगा और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा गाइस, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या होगा देखो, 16x² माइनस 20x प्लस 9, सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस 5 पहले से, तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, राइट, अपॉन 8x² प्लस 12x प्लस 21, माइनस अंदर गया तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा माइनस 3। अंडरस्टूड टिल हियर, एनी डाउट्स टिल हियर, देन लेट मी नो गाइस फास्ट। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यू विल गेट आई थिंक आई विल गेट, राइट है ना गाइस, माइनस में गलती हुआ कि कुछ, 16x² minus 20x, students continuously coming guys, shit. Okay, fine. So 16x² plus minus 20x plus 9 upon 8x² plus 12x plus 21 equals to 4x minus 5 upon 2x plus 3. ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने क्या कर दिया बेसिकली, इसको हम लोगों ने थ्योरम और इक्वल रेशियो से माइनस कर दिया। अब जब मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ पहले, जब मैं माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ओके यहाँ पर हमको क्या मिलेगा देखो, और इसको सिंपल करना अगर है तो ओके कूल गाइस, इसको और एक सिंपल मेरे ट्रिक से समझाता हूं मैं आपको, रुको बुक का छोड़ दो, मेरे ट्रिक से समझाता हूं आपको, चलो इसको और सिंपल कर देते हैं अपन थोड़ा। व्हाट इज ए क्वेश्चन, देखो 16x² माइनस 20x प्लस 9 है ना, 8x² प्लस 20x 12x प्लस 21 है। सो व्हाट आई विल डू नाउ, ऑल ऑफ यू फोकस हियर, मैं ट्रिक क्या यूज कर रहा हूं देखो, ध्यान दो अच्छे से। अभी अगर मैं ध्यान दूं 4x माइनस 5, ध्यान दो 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 को मैं ऐसा कब बना सकता हूं, देखो 16x² माइनस 20x जो आ रहा है ना, उसको मैं 4x माइनस 5 कब बना सकता हूं, मैंने ध्यान दिया, मैंने अगर 4x माइनस 5 को ना 4x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान दो 4x माइनस 5 को अगर मैं 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, 4 इंटू 4 16x² माइनस 5 4 जा 20x, ओहो मेरे को वही मिल रहा है, समझ रहे हो, अगर मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँ तो वही मिल रहा है। इधर डिनोमिनेटर में चेक करो, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 है, अगर मैं इसको 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट यू विल गेट 8x² प्लस 12x, ओहो बिंगो, देखो मैजिक ट्रिक मिल गया मेरा, यस सर नो, मतलब अगर मैं ऊपर नीचे 4x से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ये दो चीजें मिल रही है, क्या बोलते हो, तो मैं क्या करता हूं देखो, मैं अभी क्या करूंगा देखो, मैं इसको और इसको 4x से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको भी 4x से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी 4x से मल्टीप्लाई करता हूँ, गॉट इट। अब करो हमारा थ्योरम और इक्वल रेशियो करो। अभी क्या है थ्योरम और इक्वल रेशियो, क्या बोलता था, 16x² माइनस 20x
प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इक्वल्स टू, क्या था हमारा आंसर, इक्वल्स टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू, अभी थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो करें ना अपन, इसको सॉल्व करो गाइस, कितना आ रहा था, 16x स्क्वायर माइनस 20x आया, और ये कितना आया 8x स्क्वायर प्लस 12x। चलो अभी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो गाइस, क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 सब्ट्रैक्ट किससे, इस न्यूमरेटर से, तो ये होगा माइनस 16x स्क्वायर, और पहले से माइनस है तो जाएगा आपका प्लस 20x अपॉन सेम 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये कितना 8x स्क्वायर, तो माइनस 8x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 12x, तो ये बन जाएगा माइनस 12x। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो यहाँ पर, 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कैंसल्ड आउट, माइनस 20x प्लस 20x कैंसल्ड आउट, 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर कैंसल्ड आउट, 12x minus 12x cancelled out. So finally what you got, मैं देखो इसको ले रहा हूँ 4x minus 5 upon 2x plus 3, और यहाँ पर क्या बचा आपको 9 बचा और क्या बचा 21 बचा, तो हम लोग लिखेंगे 9 upon 21। एनी डाउट स्टिल हियर गाइस, मैंने क्या करा सुनो, पहले मैंने इसको 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, देन मैंने सिंपली थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो किया, सिंपली थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो में माइनस करा मैंने, मेरी मर्जी भाई, मैं प्लस भी कर सकता हूँ माइनस भी कर सकता हूँ, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो मेरे को इतना हिम्मत दे रहा है ना, वो बोल रहा है प्लस भी करो माइनस भी करो, इट्स योर चॉइस, तो मैंने माइनस कर दिया सिंपली। गॉट इट, नाउ सी हियर ऑल ऑफ यू, लास्ट समय का ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 21 into 4x plus 5 equals to 9 into 2x plus 3. So what you got, 21 4s, what you got, 21 4s, 4 1s 4, 4 2s 8, राइट, ऐसे कुछ आएगा ना बस 21, ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं अपन ना, 3 3 9, 3 7 21, यस छोटा भी कर सकते हैं अपन इसको, राइट, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो 7 का 28x हो जाएगा, प्लस 7 5 जा 35, और 3 6 जा 3 2 जा 6x प्लस 3 जा 9। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकालो, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकालो, मैं आगे बढ़ता हूँ। 28x प्लस 35 इक्वल टू 6x प्लस 9, ये आ रहा है मेरे को, स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, क्या मिला हम लोग को, 28x माइनस 35 इक्वल टू 6x प्लस 9, दैट्स जस्ट अ मिनट, हम इसको कंप्लीट कर ले। 28x 6x को इधर फेंको तो क्या बन जाएगा माइनस 6x, वैसे 9 पहले से माइनस 35 का तो कितना बचेगा प्लस 35, तो 28 माइनस 6x कितना मिलेगा आपको 22x इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 44, तो x इक्वल टू यू विल गेट 44 अपॉन 22, x you will get 2, okay, finally the answer is x equal to 2, simple, मतलब